محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں ہیں۔ جو شخص ثواب کی نیت سے ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ BRS کا نعرہ، اب کی بار کسان سرکار سے ہم کافی متاثر ہوئے۔ تلنگانہ میں جاری کسان دوست اسکیمات پورے ملک کے لیے ایک مثال۔ ملکی ترقی کے لیے KCR و اروند کیجریوال جیسی قیادت ہونا ضروری۔ پنجاب اسمبلی اسپیکر کلتار سنگھ سہسوان کو ان کے وفد کا اظہار خیال۔ اربن MLA نے کیا ان کا شاندار پیمانے پر استقبال۔ تلنگانہ کی ترقی ملک کے لیے ایک مثال۔ کوٹگری زرعی مارکیٹ کمیٹی کی حلف برداری تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سنیواس ریڈی کا خطاب۔ گاؤں گاؤں گلی گلی میں BT روڈ BRS کا کارنامہ، اسے سنبھال کر رکھنا عوام کی ذمہ داری۔ ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی، انہوں نے بھیمگل میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ جلد جلد چناپور اربن پارک کے تعمیری کاموں کو مکمل کیا جائے۔ PUC کمیٹی چیئرمین MLA جیون ریڈی نے اربن پارک کے کاموں کا لیا جائزہ و عہدیداروں کو دی ہدایت۔ رینجر منڈل میں چوروں کی جانب سے کیے گئے حملے میں زخمی ہونے والے ضعیف جوڑے سے CP کے ناگراجو نے ہاسپٹل پہنچ کر کی ملاقات۔ آرمور میں چوروں کی ہلچل، ایک ساتھ 5 دکانوں کو ایک منی فائنانس بینک کو نشانہ بناتے ہوئے لوٹا۔ محکمہ پولیس بنی تماش بین۔ ملک کی ترقی سے CM KCR سے ہی ممکن۔ ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں بالکنڈا مورتاڑ ویلپور منڈل کے BJP BSP و کانگریس قائدین نے کی TRS میں شمولیت حاصل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ڈویژن نمبر 14 میں جاری ترقیاتی کاموں کا ڈپٹی میئر ادریس خان، ضلع انچارج مجلس اتحاد المسلمین شکیل فاضل نے لیا جائزہ۔ وہ کانٹریکٹرز کو دی مختلف ہدایت۔ عوام کی جانب سے کیا گیا شاندار پیمانے پر استقبال۔ آج ڈویژن نمبر 14 NRI کالونی میں جاری ترقیاتی کاموں کا مقامی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر و ڈپٹی میئر نظام آباد ادریس خان، ضلع انچارج صدر مجلس اتحاد المسلمین شکیل فاضل کا علاقے میں پہنچ کر جائزہ حاصل کیا اور علاقے میں جاری مختلف سڑکوں کے کاموں کا پیدل دورہ کیا۔ اسی طرح مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی مسائل و پریشانیوں و جاری کاموں کے متعلق تبادلہ خیال کیا اور کانٹریکٹر کو کاموں کو معیاری طور پر جلد مکمل کرتے ہوئے عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے ہدایت دی۔ اس موقع پر مقامی عوام کی جانب سے شاندار پیمانے پر ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی کی گئی۔ موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر اعجاز حسین، معاون کارپوریٹر محمد شہباز، ارشد پاشا و دیگر موجود تھے۔ الحمدللہ مجلس کی کامیاب نمائندگی پر آج ڈویژن نمبر 14 میں جس کی نمائندگی شہر کے ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب کرتے ہیں، یہاں پر NRI کالونی میں NRI کالونی کے جتنے بھی روڈز کا کام جو رکے ہوا تھا، اس کو تمام ہی روڈوں کو احاطہ کرتے ہوئے NRI کالونی میں BT روڈوں کا کام آج شروع ہو چکا اور انشاءاللہ یہ NRI کالونی میں شاید ہی آگے کوئی روڈ کا کام بچا ہوگا۔ آگے بھی صنعت نگر ہے اور بھی پھر دوسرے بھی علاقے ہیں جو ڈویژن نمبر 14 کو سے اٹیچمنٹ ہے، انشاءاللہ اس میں بھی بہت سارے کام کریں گے۔ نظام آباد میں گزشتہ 8 سال سے جو کام ترقی چل رہا ہے، وہ جو MIM اور TRS مل کے جو کام پائے تکمیل کو پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کریں گے اور میں اس کے لیے خصوصاً
زائد فنڈز کے لیے میں ہمارے صدر محترم جناب اسدالدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جبھی بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی فنڈز کی اور زائد فنڈ کے لیے تو ہم اسد صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اسد صاحب مثبت انداز میں گورنمنٹ اتھارٹی سے منسٹر وغیرہ سے بات کرتے ہوئے زائد سے زیادہ فنڈ دلا رہے ہیں. اس کا یہی نتیجہ ہے کہ آج کم و بیش 1 کروڑ روپے کے کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیری ہوئی ہے جس کے لیے میں محلے کی عوام کو ان سے معافی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جیسا سابق میں ہمیں محلے والوں نے ایک جٹ ہو کر ساتھ دیا تھا آگے بھی اگر موقع آیا تو ایسا ساتھ دینے کی امید ہے. اتنا کہتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. الحمدللہ آج ڈویژن نمبر 14 محترم مکرم برادر محمد ادریس خان صاحب کا وارڈ آتا ہے اور محترم جناب شکیل احمد صاحب یم پریسیڈنٹ اور ہمارے سبھی محلے کے افراد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دلچسپی لے کر 1 کروڑ کے قریب ہمارے بی ٹی روڈ 5 الحمدللہ کل تک مکمل ہو جائیں گے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی میں ادریس بھائی سے اور شکیل بھائی سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وارڈوں پر توجہ دیں. یا این آر آئی اور جو وارڈز بھی ہو سکتے ہیں کسی کی اختلافی نہ ہو لیکن ہر وارڈ کے اندر ہمارا کام ہو, بنیادی ضرورت ہو, نیڈ ہو بیسیکلی کہ الحمدللہ آج پائے تکمیل تک انشاءاللہ العزیز کل اختتام پر پہنچے گا. میں محترم ادریس خان صاحب اور شکیل صاحب تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جو دلچسپی لے کر وزٹ کیا اور کنٹریکٹر سے بھی بات کی, اچھے مشورے بھی دی گئی ہے اور مستقبل کے اندر انشاءاللہ اچھا سے اچھا کام کرنے کی توقع بھی دلائی ہے. میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام محلے کے افرادوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورک شاپ کی کامیابی کے لیے ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد کے سینٹرز کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس. تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد کے دفتر میں تمام سینٹرز کے ذمہ داران سے ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے جس میں مورخہ 31 دسمبر بعد نماز اثر تا 1 جنوری 2023 بعد عشاء کو ہونے والے تفہیم ختم نبوت ورک شاپ کے تمام امور کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور سینٹرز کے ذمہ داران کے مابین ورک شاپ کے امور تقسیم کیے گئے اور یہ طے پایا کہ آئندہ وہ خواتین کے لیے اس طرح کے ورک شاپ منعقد کیے جائیں گے. اسی طرح ختم نبوت ٹرسٹ کی ویب سائٹ یوٹیوب چینل تیار کیے جائیں گے جس میں ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد کی کارکردگی اور ارتدادی فتنوں کے متعلق مواد نشر کیا جاتا رہے گا. آخر میں حضرت مفتی سعید اکبر صاحب نقشبندی صدر تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد نے سینٹرز کے ذمہ داروں سے فرمائش کی ہے کہ ہر سینٹر سے ٹیچرز, تعلیم یافتہ نوجوان, کالج کے اسٹوڈنٹس, ڈاکٹرز, وکلاء اور تاجر حضرات کو جمع کرنے کی فکر کریں. نیز عامت المسلمین سے درخواست ہے کہ اس تفہیم ختم نبوت ورک شاپ میں شرکت کرتے ہوئے ارتدادی فتنوں سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھے. اس اجلاس میں مفتی سعید اکبر صدر تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد, مولانا سید عماد الدین نائب صدر تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد, مولانا شجاع الرحمان طلحہ معتمد تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد, حافظ مجیب احمد خان خازن تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد, مفتی انور خان تحفظ ختم نبوت نظام آباد, مولانا عبدالقیوم نوری امام مسجد فاطمہ امجد, مفتی فیض الرحمان ناظر تحفظ ختم نبوت نظام آباد, مفتی جابر قاسمی صدر تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ بودھن, مولانا سید اکرم الدین صدر مجلس تحفظ ختم نبوت آرمور, حافظ جلال الدین تحفظ ختم نبوت بھیمگل, مفتی محبوب خان تحفظ ختم نبوت بچکندا, مولانا نواز اسلامی تحفظ ختم نبوت بامفڑا, مولانا منظور عالم تحفظ ختم نبوت کامریڈی, مفتی عرفان تحفظ ختم نبوت بھینسا, مفتی فیاض تحفظ ختم نبوت نندی پیٹ, حافظ اسد تحفظ ختم نبوت بودھن, حافظ جعفر تحفظ ختم نبوت نظام آباد, حافظ عیسیٰ نظام آباد, مولوی محمد حمید الدین صدیقی تحفظ ختم نبوت نظام آباد, عبدالسمیع تحفظ ختم نبوت نظام آباد, اظہر الدین تحفظ ختم نبوت نظام آباد نے شرکت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ احباب کو اس بات کی اطلاع کرتے ہوئے ہمیں خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام ایک روزہ تربیتی ورکشاپ بعنوان تفہیم ختم نبوت ورکشاپ بتاریخ 31 دسمبر بروز ہفتہ بعد عصر تا 1 جنوری بروز اتوار عشاء تک
ये प्रोग्राम, ये वर्कशॉप इदारा अनवारुल मदारिस बाबन साहब पहाड़ी निज़ामाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है। अखिलतों को सब्सिडी लोन की फराहमी के लिए मज़ीद 70 करोड़ रुपए। चेयरमैन तेलंगाना फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा है कि अखिलतों को सब्सिडी लोन की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने मज़ीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने से इत्तेफाक किया है, जिस पर चेयरमैन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर अक़लती बहबूद कोपुलाश्वर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के 7वें इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सब्सिडी लोन फराहम करने के लिए मज़ीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने पर रजामंदी जाहिर की है। एक बयान में चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर अक़लती बहबूद केशवर ने फाइनेंस कॉरपोरेशन के इकनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 और 2 ज़िमरे के सब्सिडी कर्जों को दिया जा रहा है। इसीलिए हुकूमत ने पहले ही 50 करोड़ मंजूर किए हैं और अब मज़ीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने से इत्तेफाक किया है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की दुख्तर की शादी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा दीगर शख्सियात शरीक। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की दुख्तर की शादी में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और टीआरएस के बेशतर विज़रा और अरकान मुक़न्नना ने शिरकत की और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी और जनाब बिरहानुद्दीन अवैसी एडिटर इन चीफ रोजनामा एतमाद को मुबारकबाद पेश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी की दुख्तर की शादी जनाब मिर्जा फहद अहमद बेग फर्जंद जनाब मिर्जा जीशान अहमद के साथ सदर मजलिस की क़यामगाह वाक़े शास्त्रीपुरा में अंजाम पाई। महफिल अक़द मुख्तसर अंदाज में मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख अल जामिया निज़ामिया ने खुतबा निकाह पढ़ाया और दुआ की। सियासी क़ायदीन, आला ओहदेदार, उलमा कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम और रिश्तेदारों की मुख्तसर तादाद शरीक थी। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर बालकुंडा हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी, कांग्रेस व बीएसपी पार्टी से वाबस्ता वार्ड मेंबरान व कायदीन ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बालकुंडा हल्का असम्बली में वाक़े वेलपुर मोड़तार मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी, कांग्रेस व बीएसपी पार्टी से वाबस्ता वार्ड मेंबरान व कायदीन के अलावा यूथ मेंबरान ने तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर आज रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात को मुल्की सतह पर रूबे अमल में लाने के लिए दीगर रियासतों में मुक़ीम अवाम की जानिब से मुतालबा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों से अलहदगी इख्तियार करते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से वेलपुर मंडल के पच्चला नड़कुड़ा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के वार्ड मेंबरान ए महिपाल, उपारी मोहन, पीएसीएस साबिक़ा डायरेक्टर एस साइलू, यूथ कांग्रेस कायदीन आदि श्रीकांत, माइनॉरिटी सेक्शन से शेख करीम, कानूरी विनोद, टी राजशेखर, मुनुरकापुर संगम मेंबरान ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह से मोड़तार मंडल से बीएसपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा, डी राजशेखर, प्रवीण, निखिल, संजय, साई तेजा व दीगर ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीआरएस पार्टी सादరంగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను। మీ చేరిక बीआरएस పార్టీలో తప్పకుండా పచ్చనల్పూడ గ్రామ అభివృద్ధికి ఇంకా ముందడుగు వేస్తుందని చెప్పి నేను పూర్తి విశ్వాసంతో ఉన్నా। ఈ రోజు నుంచి మీరు కూడా నా కుటుంబ సభ్యులే। మీ ఇంట్లో కష్టాల్లో సుఖాల్లో అన్నింటిలో కూడా మీ అన్నగా మీ తమ్ముడుగా మీతో। नंदीपेट मंडल मुस्लिम कमेटी से वाबस्ता मेंबरान ने मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करते हुए मस्जिद कमेटी से मुताल्लिक़ा मसाइल से की वाक़िफ़ियत।
नंदीपेट मंडल मुस्लिम कमेटी से वाबस्ता मेंबरान ने मंडल के वेन्नल व खुदानपुर देहात का दौरा करते हुए मस्जिद कमेटी से मुलाकात कर इनसे मुताल्लिका मसाइल से आगाही हासिल की और कहा कि मंडल मुस्लिम कमेटी पार्टी और जमात से बालातर होकर मंडल में मुक़ीम मुसलमानों के देहात में मौजूद मसाइल से वाकिफियत हासिल कर इनके मसाइल को हल करने के लिए कमेटी की जानिब से मनसूबाबंदी करते हुए इनकी तरक्की के लिए गुज़िश्ता 4 सालों से खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर, मंडल कमेटी फाउंडर शेख गौस, नायब सदर मोहम्मद जावेद, खजांची मोहसिन, वनल के खुदानपुर देहात कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। ये जमात वो जमात इस्लामी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, ये सब जो है सब अलग अलग है, सब जो है मिलके एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और एक जहती के साथ काम करना है। अपने डेवलपमेंट जो भी बहुत रुके हुए हैं ज़मानों से, अब तो भी जो है सब जो है सब मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में जदीद तौर पर तामीर करने वाले बीटी रोड को 10 साल तक हिफाजत के साथ रखने की जिम्मेदारी अवाम पर आयद होने का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल मंडल के देवक्का पेट से कारेपल्ली तक तामीर की गई रोड का लिया जायजा। बालकुंडा अलखैसमली में करोड़ों रुपए की मिसाल से शाहराओं की तरक्की से मुताल्लिक़ कामों को अंजाम देने का रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने इजहार करते हुए भीमगल मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने वाले रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी शाहरा पर से जाने वाले KGW ट्रैक्टर को देखकर अहदेदारान पर बरहमी का इजहार कर मुकामी त्रिधर MRO आलमूर ACP प्रभाकर को ट्रैक्टर सीज करने की हिदायत जारी की और मुकामी अवाम को कहा कि कौमी शाहराओं पर KG-Will के साथ ट्रैक्टर जाता देखकर फौरी तौर पर तस्वीर कशी करके पुलिस स्टेशन को रवाना करने वालों को इनाम फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోడ్లు అద్దంలా ఉండాలి అని చెప్పి భావిస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని భీమగల్ మండలంలో పల్లికొండ నుంచి పిప్రి మటుకు 5,30,00,000 రూపాయలతో, అట్లనే పల్లికొండ నుంచి దేవక్కపేట మటుకు 10 కోట్ల రూపాయలతో, అట్లనే దేవక్కపేట నుంచి మానాల నుంచి రుద్రంగి మటుకు 15 కోట్ల రూపాయలతో, అట్లనే దేవక్కపేట నుంచి తాటిపల్లి వరకు बालकुंडा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहक़िन में फराहमी अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर MPP लावण्य लिंगा गौड़, ZPTC मेंबरान दासरी लावण्य वेंकटेश, मुकामी सरपंच बी सुनीता ने रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी के काविशों के सबब बालकुंडा मंडल के 7 देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक़िन को मंजूर करदा 53 कल्याण लक्ष्मी चेकों की मंडल के तहसीलदार दफ्तर में मुस्तहक़िन को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क के किसी भी रियासत में रूबे अमल में न लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमां सिर्फ रियासत तेलंगाना में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात के अदायगी के लिए शुरू की गई कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत बालकुंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 53 मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी चेकों की फराहमी अमल में लाने का इजहार। इस प्रोग्राम में MPTC मेंबरान EP नारायणा, A रामराज गौड़, लिंगावा पोशेट्टी, मंडल कोऑप्शन मेंबरान सैयद फयाज अली, मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच के अलावा नायब सरपंच शेख वाहब, जक्का लिंगारेड्डी, C श्रीनिवास गौड़, कोटा मुरली, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन नागुलापल्ली सूरज रेड्डी, डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, डॉक्टर प्रसाद गौड़, मौजे के सदर सागर यादव, कोट के श्रीकांत चारी, नोमुला मोहन, नियावानंदी सायाना ने शिरकत की। आलमूर के लक्ष्मी नारायणा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में इंदु युवता खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेरे निगरानी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इंदु युवता खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेरे निगरानी आलमूर के लक्ष्मी नारायणा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर आलूर MPTC मलेश ने शिरकत करते हुए शमा रोशन कर खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि खून का अतिया एक अजीम अतिया है। नौजवान खून का अतिया देने के लिए पहल करने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। बातज़ा तंजीम के बानी सदर M साई बाबा ने खिताब करते हुए कहा कि खून का अतिया देने से हादसे का शिकार अफराद की जान बचाई जा सकती है।
इसीलिए हर एक सेहतमंद फर्द खून का अतिया देने के लिए पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सुभाष, पद्मा, सुरेश, खून का अतिया कुनिंदगान ने शिरकत की। మనం అడుగులు వేయడానికి ఈ కార్యక్రమాలు ప్రజల్లోకి మమేకం చేసే విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఇన్ఛార్జిగా నియమైనటువంటి వినయ్ కుమార్ కూడా ఇక్కడ టీంని బిల్డప్ చేసుకొని వాళ్ళు అదే విధంగా కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా విస్తృతంగా గ్రామాల వైపుగా తీసుకెళ్ళడానికి కృషి చేయాలనేసి ఆకాంక్షిస్తూ పిలవగానే కూడా మనం ఇచ్చేటువంటి రక్తం మరొకరికి नवी पेट मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहक़ीन में फराहमी अमल में लाई। नवी पेट मंडल के मुकाम पर MPP संगम श्रीनिवास ने मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम अफराद नासा सेहत के 22 सरकारी हॉस्पिटल में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने वाले 11 मुस्तहक़ीन को सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर करदा CMRF चेकों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि CM KCR की क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के अलावा सतह क़ुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसके तहत मुख्तलिफ अमराज से मुतासर होकर खानगी हॉस्पिटल में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने वाले दरकार अखराजात की अदायगी के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। संजीव गाరికి మరియు గైన్ సతీష్ గారికి ఉప సర్పంచ్ రాము గారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కలలుగంటున్న బంగారు తెలంగాణ భాగంగా ఈరోజు మనది బలుగుబడిన ప్రభుత్వం కాబట్టి ఈరోజు ఏదైతే పేద ప్రజలు रियासत तेलंगाना मुल्क में दीगर रियासतों के लिए मिसाली होने का कोटगिर ज़राअत मार्केट कमेटी में नौमुंतखबा अरकान कमेटी के हल्फ बर्दारी तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कोटगिर ज़राअत मार्केट कमेटी में नौमुंतखबा अरकान कमेटी के हल्फ बर्दारी तकरीब में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि मार्केट कमेटी किसानों की मदद करते हुए मुनाफा बख्श फसल की काश्त करने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में न आने से पहले क़याम अमल में लाए गए ज़राअत मार्केट कमेटी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए आज अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल हमीद को मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर नामज़द करने का इजहार किया। కాబట్టి ఈనాడు కోటగిరి మార్కెట్ కమిటీ ఉన్న 4 పెద్ద కమిటీ, దానికి హమీద్ గారిని మనం ప్రెసిడెంట్గా చేద్దాం, చైర్మన్గా. ఈరోజు యువకుడు, విద్యావంతుడు, ఆ నమ్మకంతో ఈ బాధ్యతను అప్పచెప్తున్నాం. దాంతోపాటు ముఖ్యమైనటువంటిది స్వర్గీయులు అబ్దుల్లయ్య గారు మన మధ్యన లేరు. వారు నేను శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నిక కాకుండా ముందు కానీ ఎన్నికైన తర్వాత కానీ నా అడుగులో అడుగు వేసి కష్ట సుఖాల్లో నాతో పాటు పాలు పంచుకున్నటువంటి వ్యక్తి స్వర్గీయ అబ్దుల్లయ్య గారు. आर्मर शहर में रात के औकात कार सारिकों ने एक फाइनेंस बैंक के अलावा 5 तिजारती इदारों में सरक़े की वारदात अंजाम देकर राहफरार इख्तियार की। आर्मर शहर में सारिकों ने रात के औकात कार में म्यूनसिपल में वाक़े पुलिस कमिश्नरेट असिस्टेंट दफ्तर में कम फासले पर मौजूद 5 तिजारती इदारे के अलावा एक मिनी फाइनेंस बैंक में सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए तकरीबन 1 लाख नकद रकम लेकर राहफरार इख्तियार करने का वाक़या पेश आया। फोन చేసినాము అరౌండ్ ఈ సంఘటన 3 minutes మైంది కెమెరాలో వస్తే 4:30కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మరి తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా వస్తారని చెప్పి అంత దాని గురించి యూజ్ చేస్తున్నాం. 12:30కి క్లోజ్ అయ్యేది కరెంట్, అరౌండ్ 12:30 కరెంట్ అంటే మొత్తం పైన పోయింది, మన బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కడ లేదు, నీ లైనే పోయింది. అంటే మేబీ పర్పస్లీ చేసి ఉండొచ్చు, కాకపోతే కరెక్ట్గా తెలియదు మనకి. ఎవరు అనలేము, ఎవరు చూసలేము, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు. जिले टियार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनतापुरम के तहत माकलूर मंडल के चिनापुर देहात में आर्मूर अर्बन पार्क से वाबस्ता तामीरी कामों का लिया जायजा। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले टियार सदर जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनतापुरम
के तहत मालपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ चिनापुर देहात पर आरमूर अर्बन पार्क से वाबस्ता तामीरी कामों का जायजा लेने के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा कौमी नुमाइंदों के हमरा आरमूर अर्बन पार्क में जारी तामीरी कामों के पेशरफ का मुआयना करते हुए कहा कि महकमे जंगलात के ज़ेरे निगरानी में आरमूर अर्बन पार्क के तामीरी काम अंजाम देते हुए 66 एकड़ यानी कुल 470 एकड़ पर किए जाने वाले पार्क के तामीरी कामों को इस माह में मुकम्मल करते हुए अनकरीब CM KCR के हाथों इफ्तिताह अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। అటు బోటింగ్ ఇటు ఇంకోటి గాజువాక కుంట ఒకటి ఉంది, వినయకుంట కూడా గాజుల కుంట ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్కి వస్తున్నాయి డబ్బులు. ఇంకొక 1,70,00,000 రూపాయలు ఖర్చు కావాల్సి ఉంది. అది కాక ఇంకొక 5 కోట్ల రూపాయలు ఈ పార్కులో అయితే ఒక్కసారి ఎంట్రీ అయ్యి బయటకు రావాలి ఈ పార్కులో అంటే 6 కిలోమీటర్లు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 6 కిలోమీటర్ల వాకింగ్ ట్రాక్ ఉన్న ఏకైక పార్కు ఆర్మూర్ అర్బన్ పార్క్ అని చెప్పి సందర్భంగా BCTU सैलेनो कैलेंडर का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने रस्मी इजराई अमल में लाई। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर में BC मुलाजमीन से मुताल्लिका सालाना कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत मुंतखब होने वाले स्कूल में जारी तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए सालानों में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम इत्तेहाद तो एकजहती के साथ ज़िंदगी गुजारने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BC मुलाजमीन संगम ज़िले सदर M विनोद कुमार, जनरल सेक्रेटरी R गोपाला कृष्णा, निगरान कार मेम्बरान रवि कुमार, महिला सदर विजय लक्ष्मी, रियासती एसोसिएट सदर M प्रवीण गौड़ व दीगर ने शिरकत की। बीजेपी व TRS हुकूमत इंतखाबात के दौरान दिए गए वादों को अमली जामा ना पहनाकर अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर के DCCB भवन में मुनक़दा मीडिया इजलास से PCC खजांची साबिक़ा वजीर सुदर्शन रेड्डी का खिताब। शहर के कांग्रेस भवन में जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में जिले कांग्रेस पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़द किया गया। इस इजलास में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर PCC खजांची साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, PCC एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर साबिक़ा गवर्नमेंट विप इरावर्ती अनिल, PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, PCC जनरल सेक्रेटरी नगेश रेड्डी, बांसवाड़ा इंचार्ज कासुला बालराज ने शिरकत। इस मौके पर PCC खजांची साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि BJP व TRS हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के दौरान दिए गए वादों को अमली जामा ना पहनाकर अवाम को वरगला रहे और BJP हुकूमत के दौर इख्तिदार पर आने के बाद हर साल में 2 करोड़ मुलाजिमत देने का वादा करते हुए अब तक तालीम मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुलाजिमत ना देकर दिए गए वादे को नजरअंदाज करने का इजहार किया। जिले के सरकारी हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले रेंजल देहात के ज़ईफ जोड़े से कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मुलाकात करते हुए की इयादत। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने जिले के मुकाम पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल में शरीक होकर तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले रेंजल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ईफ जोड़े से मुलाकात कर इयादत की, वो हिम्मत अफजाई की। पंजाब रियासती कानून-साज़ असम्बली स्पीकर कुलतार सिंह साधवन को ज़िले ओहदेदारान की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से पंचायत रियासती कानून साज असम्बली स्पीकर कुलतार सिंह साधवन का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने MLA कैंप दफ्तर पर कुलतार सिंह साधवन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर पंचायत स्पीकर कुलतार सिंह साधवन ने खिताब करते हुए CM KCR के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात को काबिल मुबारकबाद करार दिया। स्पीकर అయిన తర్వాత పంజాబ్లో కొత్తగా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మేము చాలా దగ్గర విన్నాం, టీవీలలో చూసాం, పేపర్లలో చదివాం. మరి ప్రత్యక్షంగా నేను వచ్చి చూడాలనుకుంటున్నాను తెలంగాణ అని చెప్పేసి వారు నిర్ణయం తీసుకొని వారు ఒక్కరే రాకుండా మరి డిప్యూటీ స్పీకర్ జయసింగ్ రౌడీ గారు, అదేవిధంగా ఎంపీ సిన్హా గారు, అదేవిధంగా కుల్వంత్ సింగ్ పండోరి గారు, అమర్జీత్ సింగ్ గారు, 2 ఎమ్మెల్యేలు, ఒక డిప్యూటీ స్పీకర్, ఒక రాజ్యసభ ఎంపీ గారు, వీరందరినీ తీసుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ये मेरा विश्वास तब से सुदृढ़ होने लगा है जब से मैंने देखा कि दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश छोटा सा प्रदेश, वहां पर गरीब से गरीब की भी सुनी जा रही है,
बिजली मुफ्त, बिजली का बिल 0 आता, चिकित्सा मुफ्त, इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। क्या बात है। एक गरीब रिक्शे वाला भी सोच सकता है कि मेरा बच्चा पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा। ये मुमकिन हुआ है जब अरविंद केजरीवाल जी भारत की राजनीतिक पटल पर। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बीआरएस का नारा अब की बार किसान सरकार से हम काफी मुतासिर हुए। तेलंगाना में जारी किसान दोस्त स्कीमात पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल। मुल्क की तरक्की के लिए केसीआर व अरविंद केजरीवाल जैसी क़यादत होना जरूरी। पंजाब असेंबली स्पीकर कुलतार सिंह साधवान को इनके वफद का इजहार ख्याल। अर्बन एमएलए ने किया इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। तेलंगाना की तरक्की मुल्क के लिए एक मिसाल। कोटगी ज़राई मार्केट कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। गांव-गांव गली-गली में बीटी रोड बीआरएस का कारनामा, इसे संभाल कर रखना अवाम की जिम्मेदारी। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने भीमगल में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। जल्द जल्द चिन्नापुर अर्बन पार्क के तामीरी कामों को मुकम्मल किया जाए। पीयूसी कमेटी चेयरमैन एमएलए जीवन रेड्डी ने अर्बन पार्क के कामों का लिया जायजा व अहदेदारों को दी हिदायत। रेंजर मंडल में चोरों की जानिब से किए गए हमले में जख्मी होने वाले ज़ईफ जोड़े से सीपी किया नागराजू ने हॉस्पिटल पहुंचकर की मुलाकात। आरमूर में चोरों की हलचल, एक साथ 5 दुकानों को एक मिनी फाइनेंस बैंक को निशाना बनाते हुए लूटा। महकमे पुलिस बनी तमाशबीन। मुल्क की तरक्की से सीएम केसीआर से ही मुमकिन। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बालकुंडा, मोरताड़, वेलपुर मंडल के बीजेपी, बीएसपी व कांग्रेस कायदीन ने की टीआरएस में शमूलियत हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।